All right, so from today we are going to start with new chapter for JEE NEET, and of course we will go a little slow. So the approach will be, first we will go through all what we have learned in our theory classes. उसके बाद what we are left out with, क्योंकि as you know JEE NEET demands little more than what you learn in theory classes. तो नॉर्मल अप्रोच ये होता है कि हम पहले रिवाइज कर लेंगे, और इंटेंशनली ग्रेविटेशन में रख रहा हूं क्योंकि कल ही आपका टेस्ट हुआ. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टुडे, theoretical questions. So obviously gravitation में we are mostly concerned with what is happening in our solar system. मतलब we will start with Kepler's law in short. So Kepler's law of planetary motion, because it specifically talks about planets, it does not talk about satellites revolving around planets. क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि सैटेलाइट like our moon, it is in circular orbit, it is not in elliptical orbit. और जो planets है they are mostly in elliptical orbits apart from few, like Mercury is very close in. तो जो प्लैनेट जितना पास में होता है उसका ऑर्बिट उतना ही सर्कुलर होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलाइजेशन. वो क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ टाइडल फोर्स. अब वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज दैट्स हायर लेवल फिजिक्स, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. विल स्टार्ट विद बेसिक. तो केपलर का पहला लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, इट टेल्स यू, इट इज अ थ्योरेटिकल लॉ, राइट. इसका कोई भी प्रूफ नहीं है. इट टेल्स यू दैट all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit, with sun sitting at one of the foci, whatever it is, right? Good. One of the foci. Then nearest point is called as perihelion, and farthest is called as aphelion. I would like to know from your side, what do you mean by focus? So focus का मतलब ये होता है in general set of points satisfying a particular geometrical condition. मतलब for example, if I take a circle, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, any point on the circle, A point, B point, any point, the radius being, let us say, R. All these points satisfy a common geometrical property या equation, which is x square plus y square equal to r square, right? और ये कैसे आता है मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था. did or not? Yes, just by distance formula, right? तो ये ओरिजिन है और ए पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो सर्कल का कोई भी पॉइंट लो गया तो it will satisfy this particular equation, x square plus y square equal to r square. So focus is nothing but set of all the points satisfying a given geometrical condition, right? For example, here this is mathematical equation which all points are satisfying. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि any point is at equal distance from the center, in short. So similarly in ellipses, not eclipse but ellipse, in ellipses, क्योंकि sometimes even I will say it eclipse, वो आदत पड़ गई है, तो mind it. मैं अगर eclipse बोल रहा हूं तो that is not correct. I am talking about ellipse, right? So in ellipse there are two such points such that, first of all you should know what is semi major axis.
सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि सर्कल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों सेम लेंथ है दोनों का, पर यहाँ पे क्या है कि एक एक्सिस बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, उसका आधा मतलब सेमी मेजर एक्सिस, और दूसरा एक्सिस छोटा है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, उसका आधा मतलब सेमी माइनर एक्सिस। तो ए इज सेमी मेजर एंड बी इज सेमी माइनर एक्सिस, राइट। तो फॉर एन इलिप्स ऐसे दो पॉइंट है, राइट, सच दैट आई मीन द सम ऑफ, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ सी, इसका डिस्टेंस एस से सम डिस्टेंस आर सी, आर एस मान लो, ओके, और ये एस डैश पॉइंट है, और सी का डिस्टेंस एस डैश से आर एस डैश, करेक्ट। तो इस इलिप्स पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी, तो हर एक उस पॉइंट के लिए ये एडिशन हमेशा सेम रहेगा। तो इफ आई टेक सी पॉइंट और इफ आई टेक डी पॉइंट, तो आर सी डैश, आर डी प्लस आर डी डैश, ई पॉइंट आर ई प्लस आर ई डैश। तो any point on the ellipse will satisfy this condition, मतलब sum of that point from first focus and the second focus is equal to sum of other point from both the focus is equal to sum of some other point from both the focus is always same. So that is focus, क्योंकि मैं किसी और पॉइंट से मेजर करूंगा तो we will not get the same addition. Good. Then so Kepler's first law tells you that any planet is going round, is not round going around, it is orbiting around the sun in an elliptical orbit. Okay, elliptical orbit with sun at one of the foci. Good. Then ऐसा क्यों बोला एनी प्लैनेट गोइंग राउंड द सन, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के लिए ही है। बाकी स्टार्स के अराउंड अगर प्लैनेट्स हैं तो दे मे और मे नॉट फॉलो दिस। और वैसे भी जब केपलर ने ये सब लॉज दिए तो ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी और स्टार के अराउंड प्लैनेट होंगे। गुड। एंड टू टेल यू, बिकॉज मेरा काम ही इस सब्जेक्ट पे है, तो देर आर ओनली 4% सिस्टम्स विच लुक मोर और लेस लाइक आवर सिस्टम, मतलब लाइफ ढूंढने के चांसेस भी बहुत कम है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बाकी जगह पे मोस्टली स्टार और जो भी बड़े बड़े प्लैनेट्स है दे आर वेरी नियर, इतने नियर है कि 2 दिन 3 दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर आवर सोलर सिस्टम। ओके, इसको एक ऑल्टरनेट नाम भी है वैसे। ये किसका इंफॉर्मेशन देता है हमको? ऑर्बिट का। तो इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट। देन वी सॉ व्हाट आर केपलर्स सेकंड, what is Kepler's second law? Very good. So if I join a line from the sun to a planet, let us say planet being be at B point, it will always cover equal area in equal interval of time। मतलब अगर ये एरिया A1 इसने 1 महीने में कवर किया है, तो C से D अगर ये एरिया A2 भी 1 महीने में कवर किया है, तो A1 और A2 इक्वल होंगे। सो द रेडियस वेक्टर या फिर द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स covers equal area in equal interval of time. It is called as law of areas. And law of areas is a consequence of conservation of, theoretical question आया था ये। Law of areas as mentioned by Kepler follows because of law of energy, law of conservation of energy, law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum, all of this angular momentum. So it is a consequence of conservation of angular momentum.
कल टेस्ट दी थी तो ये एक्सपेक्टेड था दैट यू शुड बी नोइंग, मैंने डिराइव करके दिया था। हमने प्रूव भी किया था कि ये एरियाज कांस्टेंट आते हैं। हमने बोला था कि ये एरिया को वेक्टर लेंगे, ये ए वेक्टर कांस्टेंट आता है क्योंकि एल वेक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट आता है। सो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज घर पे जाके वापस एक बार देखना। केपलर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ period, law of period. It tells you what? It tells you square of time period of any planet around sun is directly proportional to cube of its semi major axis. Okay, तो A मतलब semi major axis है. Good. Then next thing that you should know is Newton's law of gravitation या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इट इज वेरी सिंपल, इट टेल्स यू force between any two masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them, the distance being measured from center to center, center of mass to center of mass. And proportionality constant happens to be G, capital G. And this capital G called as universal gravitational constant, because you measure it anywhere in the universe, it will always give you the same value. It is given by Fr square upon m1 m2, which means that SI unit of G will be Newton meter square per kilogram square. Dimensions of G will be force m1, L1 t minus 2, mass into acceleration, distance is L2 again, नीचे m1 m2 मतलब मास इंटू मास मतलब m2। तो फाइनली ये आपको मिलेगा g इज इक्वल टू m माइनस 1 L3 t माइनस 2, राइट। ये भी एग्जाम में आता है। दे कैन इवन आस्क यू डायमेंशंस। ओके, गुड। देन what next thing we saw was एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन। सबसे पहले हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज, वो बाद में देखेंगे हम लोग पहले देखेंगे कि हाउ डू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लिखते हो ना g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वो कहां से आया? मतलब if I have earth of mass capital M and radius of earth being capital R, and there is a body of mass small m sitting on the surface of earth, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डेफिनेटली कैपिटल R है। तो फिर आप बोलते हो कि वेट ऑफ द बॉडी is due to gravitational force. If I say, what do you have weight? I'm not asking you what is the value of your weight. Do you feel you have weight? लगता है क्या weight है? लगता है ना? क्यों? Gravitational force. तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका weight होगा because of gravitational force. That is given by mg, and gravitational force is g. Mass of earth, mass of that body, distance from center to center. गया गया, तो g is equal to g m by r square.
but this value is on the surface of earth. तो ये आपको पता होना चाहिए. This is the equation for acceleration due to gravity of a body on the surface of earth, which means G is independent of mass of the body. बॉडी का मास 10 किलोग्राम है या 100 है या 1000 है या 10,000 है, डजंट मैटर. हर एक के लिए G की वैल्यू सेम होगी. इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एक लीफ और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, मान लो हाथी, यू आर ड्रॉपिंग देम फ्रॉम द सेम हाइट, they are supposed to reach the ground exactly at the same time. बट ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? नहीं, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना. मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है. मास ऑफ अर्थ तो लीफ के लिए भी, मेरे लिए भी, उस हाथी के लिए भी, इस मोबाइल के लिए भी, इस पेन के लिए भी, सबके लिए सेम ही है ना मास ऑफ अर्थ. नो नो, मान लो अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सबका सेम है. एयर रेजिस्टेंस, जब आप लीफ को ड्रॉप करोगे एटमॉस्फेयर से, जब वो नीचे आ रहा है तो देयर इज मोर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर ऑन द लीफ compared to heavy object. So it is because of air resistance. That is correct. Okay. तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. दे मेड अ वैक्यूम और एक लीफ को और एक हेवी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बॉल को, मेटालिक बॉल को, एंड दे रीच्ड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. ओके गुड. तो ये पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है. इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी. ओके गुड. देन व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग? हमको पता तो लग गया कि ये G की वैल्यू gm/r² आता है, रफली 9.8 आता है, रफली. बट डज इट वेरी? तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, क्या ये चेंज होता है? क्या ये हाइट के साथ चेंज होता है? क्या ये डेप्थ के साथ चेंज होता है? क्या ये अर्थ के शेप के साथ चेंज होता है? या फिर आप अगर इक्वेटर से पोल पे जा रहे हो तो चेंज होता है? तो वेरिएशन इन G with height पहला. तो we will see how does G varies with height. height को altitude बोलते हैं, right? good. so as you know, मैंने पहले क्या किया था, हमने अर्थ के ऊपर सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो डिस्टेंस r पे था सेंटर से. इस अर्थ का मास कैपिटल M अज्यूम किया है. मैं इस ऑब्जेक्ट को एट हाइट h भी रख सकता था, मतलब टोटल डिस्टेंस में स्मॉल r कैपिटल R प्लस h भी लिख सकता था. तो अगर अर्थ की सरफेस पे जो बॉडी का वेट है वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, मतलब आपने लिखा था mg इज इक्वल टू जी m बाय कैपिटल R², कैंसल, ये सरफेस वैल्यू हो गई. तो अगर मैं अर्थ से थोड़ा ऊपर जा रहा हूं तो वहां पे भी तो जो वेट होगा वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही होगा. फिर आप बोलोगे मून की वजह से नहीं होगा क्या? होगा, इफ यू गो क्लोज इनफ टू मून. लेकिन मून का ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ, राइट? गुड. तो वेट मतलब mgh हियर व्हिच इज gmm अपॉन कौन सा r? स्मॉल r, मतलब कैपिटल R प्लस h का स्क्वायर. कैंसल. तो एज यू सी gh मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज नॉट सेम एज दैट ऑफ एट द सरफेस. तो नॉर्मली हमको कंपेयर करना होता है, तो कंपेरिजन रेशो से होता है. तो रेशो ले लो फिर, gh अपॉन gs, इसका रेशो लोगे तो आपको मिलेगा r. अच्छा बाय द वे ये स्क्वायर लिखना रह गया, तो r का स्क्वायर अपॉन
r प्लस एच का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास r अपॉन r प्लस एच स्क्वायर। तो जी एच इज इक्वल टू जी एस r, इसको आप नीचे भी ले जा सकते हो, अप टू यू, बट आई कीप इट लाइक दिस। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? when the height is comparable to radius of earth। जैसे what is radius of earth? 6400 kilometer। okay, good, right? if I say height is 100 kilometer, height is 100 kilometer, या फिर height is 640 kilometer। if I say h is 640, can I write down 640 as 6400 upon 10? मतलब I can write down h as r by 10। तो ये जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको बोलता हूं, ये जो इक्वेशन 1 है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ h इज कंपेरेबल टू r। इट इज डबल टिल्डा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल, सिंगल टिल्डा मतलब कंपेरेबल, दैट यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ r। रफली रफली बोलोगे तो रफली रफली वो नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में। What I am trying to say in this case, h is not very less than r। तो h टिल्डा r इसका मतलब होता है कि h की वैल्यू r से बहुत कम नहीं है, 110 तक ठीक है, इन सम केसेस 120 तक भी ठीक है इन सम केसेस। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? यू विल नीड टू नो कि व्हेन h कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ r। ओके, तो मैं बताऊंगा कि कौन से लिमिट तक ये वैलिड है, that we will see while doing numericals। good, अब because we can further simplify this particular equation using a little bit of mathematics, I can write down gh as gs। r को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो r प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, इसका मतलब I can write as gs into 1 upon r plus r is 1, h by r, 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, तो स्क्वायर नीचे के टर्म को कर लिया। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, अब 1 प्लस एच बाई आर रेज टू -2। ओके, सो इट टर्न्स आउट टू बी 1 minus 2h by r। binomial theorem। what is binomial theorem? a plus b bracket raised to n is, I am sure कि अभी तक आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। ओके, सो नहीं हुआ है, छोड़ो। एनीवेज, इट इज a raised to n, b raised to 0, राइट, और यहाँ पे आप लिखते हो nc0, बेसिकली nc0 प्लस nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 प्लस nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2। मतलब व्हाट आई वांट टू नोटिस इज कि n का a का पावर 1 से कम हो रहा है, b का पावर 1 से बढ़ रहा है। कब तक? जब तक लास्ट टर्म n a raised to 0 b raised to n नहीं आता। मतलब आप जब a प्लस b raised to n की जगह पे 2 या 3 डालोगे, तो यू राइट a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसी फॉर्मूला से आता है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस बी बाई ए पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, पावर में 2, पावर में 3 या पावर में n, और यहाँ पे n नेगेटिव, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 पहला टर्म माइनस 2b बाई ए, उसके बाद के टर्म में b बाई ए रेज टू -3, फिर उसके बाद b बाई ए रेज टू -4। ऑलरेडी b बाई ए इज वेरी लेस देन 1 ऑलरेडी,
उसके बाद और माइनस पावर, मतलब इट विल बी स्टिल लेस, तो यह टर्म डायरेक्टली होती है निग्लिजिबल, कैंसल आउट। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास h न्यूमरेटर if it is very less compared to denominator, मतलब h by r is very less than 1, तो उस केस में ये जो इंडेक्स है इसको सीधा यहां पे लाके रख देना, खत्म। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ g at height h, but the height h is very small compared to radius of earth, for example 1 kilometer, for example 2 kilometer, it is very small। तो इक्वेशन 1 कब यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 640 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, r by 20, 640 is r by 10, और ये कब यूज करेंगे, जब ऐसा बोला होगा at height h from the surface of earth the value of acceleration due to gravity is 99% of surface value, मतलब कितना कम हुआ, सिर्फ 1% कम हुआ। इसका मतलब हाइट भी कम रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे वैल्यू विल डिक्रीज। क्यों, इक्वेशंस, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे h बढ़ेगा, जैसे जैसे h बढ़ेगा ये फैक्टर बढ़ेगा, ये फैक्टर का स्क्वायर है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ the value of g decreases. So if the body still has 99%, or not body, but if the value of g is still 99% of its surface value, मतलब एक ही परसेंट कम हुआ है, मतलब द बॉडी मस्ट बी वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो फिर इक्वेशन 1 यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। अगर मैंने बोला कि 50% हो गया वैल्यू, the value of acceleration due to gravity at height h is 50% of surface value, तो इक्वेशन 1 यूज करोगे कि 2 यूज करोगे, y सेकेंड, 50% हो गया मतलब 50% से रिड्यूस हो गया, तो हाइट ज्यादा होगा इसलिए रिड्यूस हुआ होगा ना, 50% डिक्रीज हो गया, तो 50% डिक्रीज कब होगा, ओके यू डोंट, ओके आई विल टेल यू सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। व्हाट इज gh वैल्यू, 50% ऑफ सरफेस मतलब gs by 2, 50% मतलब हाफ होता है कि नहीं, होता है ना, करेक्ट। मैं एक काम करता हूं, जस्ट टू मेक इट सिंपल मैं 25% मानता हूं, क्योंकि फिर वो स्क्वायर रूट लेंगे तो, राइट। तो इसका मतलब gh by gs ये 1/4 आ गया, but gh by gs if you remember it is r upon r plus h bracket square, r upon r plus h bracket square, स्क्वायर रूट लूंगा तो 1/2 r upon r plus h, मतलब r plus h is 2r, right, h is equal to r, isn't it very high value, मतलब हाइट कितना 6400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा, वेरी गुड। अगर मैंने बोला कि 1% ही है, तो gh is 1% of g, व्हाट इज 1%, 10 पावर -2, क्योंकि 1/100 है ना, तो gh by g ये 10 पावर -2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, ओके, तो ये आ जाएगा आपका gh by gs 10 पावर -2, 1 - 2h by r, ओके, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2h by r इज इक्वल टू 1 - 0.01, हाउ मच इज दिस, 0.99, मतलब 99/100, तो 2h by r is 99/100,
मतलब h is 99 by 200 times of r. Okay, roughly r by 2, roughly r by 2, बराबर है, करेक्ट है, हाँ 192 और 200 तो 8 का डिफरेंस है ना 200. ओके, तो 0.99, can I write 0.99 is 99 by 100? Is it correct? Good, करेक्ट है. देन मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने ये कहाँ से आया, यू ऑलरेडी नो दिस. फिर 2h by r 1 minus 10 power minus 2 मतलब 1 minus 0.0 मतलब 0.99. तो 0.99 99 by 100, 99 by 100 और वो 2 को मल्टीप्लाई किया था, बराबर. तो 99 by 200, रफली 1 by 2, r by 2, करेक्ट. रेडियस बाय 2, h is रेडियस बाय 2, है ना, है ना. तो ऐसा तो ये भी कंपेरेबल हो गया. फिर कहाँ गलती हुई? मैंने जो बोला आपने अच्छे से सुना नहीं, यहाँ गलती हुई. मैंने बोला 99% रिटेन किया, 1% कम हुआ, 1% से डिक्रीज हुआ. व्हेन यू राइट GH इक्वल टू 1% ऑफ जी, आप बोलना चाहते हो कि GH की वैल्यू ये 1% ऑफ G है. मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि 1% से डिक्रीज हुआ. मेरे पास 100 रुपए थे, 1 रुपया चले गया, तो कितना बचेगा? हाँ, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे से लिखना समझना जरूरी होता है. ये 99% ऑफ जी रिटेन हुआ है, 1% गया है. ओके, तो यहां हुई गलती. तो GH बाई जी इज इक्वल टू 99 बाई 100. अब इसको लिखो 1 माइनस 2h बाई r इक्वल टू 99 बाई 100. तो 2h बाई r is equal to 1 minus 99 by 100, that is 1 by 100. ओके, तो आपको मिलेगा h is equal to r upon 200. 6400 upon 200 is 32 किलोमीटर. करेक्ट. आप समझा कहां पे अप्लाई करना है? गुड. तो ये नॉर्मली गलती ऐसी होती है, इसलिए आई टोल्ड यू राइट नाउ कि कहां पे गलती हो सकती है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. तो अब आपको पक्का पता होना चाहिए कि कौन से डोमेन में, और डोमेन आपको पता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, कौन से डोमेन में मतलब कौन से वैल्यूज के लिए आप इक्वेशन 1 यूज करोगे, कौन से वैल्यूज के लिए इक्वेशन नंबर 2 यूज करोगे. इफ आई टेल यू h is equal to 3200, equation 1, first equation. If I tell you 32 kilometer, second equation. Good. If I tell you the gravity value at height h is 99% of surface value, 99% of surface value. Second, if I tell you that the value of action due to gravity is reduced by 1%, reduced by 1% मतलब 99% retain हुआ. Equation number 2, right? If I tell you the value of G is 10% of its surface value, 10% remaining है, 90 गया, मतलब हाइट, हाँ मतलब हाइट ज्यादा होगा. Good. You will realize why I am asking you this now, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको लगेगा ये. दूसरा, अभी अर्थ से ऊपर गए, है ना, फिर अभी अर्थ के नीचे भी जाके देखते हैं कि क्या होता है. तो विद डेप्थ. अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जब भी मैं अर्थ के ऊपर जा रहा था, तो अर्थ का पूरा ही मास एक्ट हो रहा था फॉर वेट. क्योंकि इफ यू सी दिस इक्वेशन, मैं सरफेस पे हूं तो भी अर्थ का पूरा मास फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल. मैं सरफेस से ऊपर हूं तो भी अर्थ का पूरा मास ही फोर्स लगा रहा है ना, पूरा का पूरा मास. करेक्ट. But as soon as you start going inside, let us say we are at a depth of D. The object is at a depth of D. इसका मतलब
अर्थ का पूरा मास अब एक्ट नहीं करेगा, तो अर्थ का कितना मास एक्ट करेगा? जो भी मास डेप्थ डी पे होगा, मतलब जो भी मास r माइनस डी के अंदर होगा, उस स्पीयर के अंदर होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के अंदर गया, मतलब अभी अर्थ का पूरा मास उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, तो जिस पॉइंट पे वो है, उस पॉइंट के नीचे कितना मास है वो देखना पड़ेगा। गुड। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो GS सरफेस वैल्यू को हमको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब पहले एक शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर तीसरा शेल है, और दिस ऑल द शेल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। सेंटर से लेके सरफेस तक डेंसिटी सेम है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। हमको पता है क्यों नहीं होता। अर्थ के अंदर लावा होता है, मोल्टन लावा इस प्लाज्मा, उसका डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू सरफेस। सरफेस पे रॉक है, रॉक का डेंसिटी ज्यादा है, करेक्ट। बट हम अज्यूम करते हैं द अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। फिर हम बोलते हैं हमको पता है, हमको क्या पता है? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर हम बोलते हैं कि मान लो, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, अर्थ इज इलिप्सॉइड, बट मान लो इलिप्स है, सॉरी स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब रो गया और गया, मतलब सरफेस वैल्यू इज 4/3 जी पाई आर रो। ये भी नीट का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस, ये 4/3 पाई जी आर रो। गुड। देन ये तो सरफेस पे हो गया। डेप्थ में मैं अगर देखूंगा तो मुझे सेम टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेगा, सिर्फ यहां पे मुझे r माइनस डी मिलेगा। फिर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली माई एम इज टू कंपेयर, क्योंकि मुझे सरफेस का वैल्यू पता है। तो जी डी अपॉन जी सरफेस इज 4/3 पाई रो जी, सब कैंसल, सिर्फ r नहीं कैंसिल होगा, r माइनस डी बाई आर। इसका मतलब 1 माइनस डी बाई आर, मतलब जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पे कोई दूसरा इक्वेशन नहीं बनता है, यू हैव ओनली दिस इक्वेशन, करेक्ट। गुड। टू एंड विथ, where do you expect the value of G will be 0 inside the earth? Center. Why? Because you will put D equal to R. R by R is 1, 1 minus 1 is 0. But logically, acceleration due to gravity comes from mass. सेंटर में मास ही नहीं होगा तो कहां से ग्रेविटी होगा, राइट? गुड. That's it. So we will stop here and we'll continue this point onward in the next session.